air is all around us. Even in the room where you are sitting. But it cannot be seen, felt, tasted, or smelt unless it is dirty. We cannot see the air when it is clean, but we can feel the air when it moves, like when the wind blows. We can even hear it when it moves very fast. Air can give shape to things as it occupies space. Air has weight. Like us, all living things need air to breathe. Let us do an activity. Cover a potted plant with a plastic bucket. Do not forget to water it daily, but cover it soon afterwards. Remove the bucket after 3 days. What do you observe? The plant which was inside the bucket is dead, as it did not get air to breathe. One of the reasons why plants are so important to us is because they produce oxygen while making food. Oxygen is the most important gas for all living things, as it is needed to stay alive. It also keeps the air fresh. Along with oxygen, air also contains other gases like nitrogen and carbon dioxide. Did you know Earth is the only planet in our solar system that has oxygen on it? Oxygen is also important for the fire to exist. Let us see that by an activity. Light a candle and cover it with a glass. Observe it for some time. You will see that even without blowing it, the flame goes out after some time. Because the oxygen in the air that was present in the glass got used up. Thus we say air is required for burning. So, if we have to put out a fire, we cut the oxygen supply to it. What air contains? Now, let us look at what air contains. Have you ever seen steam coming out of boiling water? This steam is water vapor. Air also contains water vapor. Water vapor is very important for rains. Without water vapor, we would have no rains. Air also contains dust particles and smoke. Burning rubbish, wood, leaves, firecrackers, and plastic. Smoke coming out of factory chimneys, fumes coming out of vehicles create smoke in the air and lead to air pollution. Air also contains a lot of very tiny living organisms called germs. These germs are dangerous. They can infect us and make us ill. Smoke, dust, and germs are harmful to us, and we must try to keep the air free from these. Wind. Activities like
kite flying, and parachute sailing, working of the windmill are possible with the help of moving air. This moving air is called wind. Wind also helps in carrying pollens and light seeds of flowers and fruits to different places. This is how new plants grow, sometimes in far off places. We can also use the energy of wind to produce electricity with the help of windmills. A gentle wind is called breeze. When the wind blows strongly with a lot of force, it becomes a storm. Storms can sometimes uproot trees and cause a lot of damage. They are not good for crops. Clean air. The best way to have clean air is to plant more trees. Stop burning garbage. Smoke from factories should be controlled. Vehicle owners should make sure that their vehicles are checked for pollution regularly. Hello student, good morning. Today we will learn about lesson 6, air around us. Air is all around us. हवा हमारे चारों तरफ है. We are surrounded by air all the time. और हमारे चारों ओर हवा सभी समय रहता है, all the time. But we cannot see or hold it. पर हम इसे देख नहीं सकते और नहीं पकड़ सकते. वी ओनली कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज. हम इसे महसूस कर सकते हैं. कब? जब ये चलती है. द एयर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड शेपलेस. एयर है, उसका कोई कलर नहीं होता है और न ही शेप होता है. उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता और न ही कलर होता है. देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट एयर. एयर के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जीवित रहने के लिए एयर की आवश्यकता है. वी ब्रीथ द एयर अराउंड अस. हम सांस किससे लेते हैं? एयर से. ऑन होल्डिंग आवर ब्रीथ आवर बॉडी डज नॉट गेट एयर एंड वी फील ब्रीथलेस आर सफोकेटेड. अगर हम नाक को पकड़ लेते हैं, है ना, तो सांस लेने में हमें तकलीफ़ होती है तो कैसा महसूस होता है? अनईजी महसूस होता है ना. थस एयर अराउंड अस इज़ वेरी इसेंशियल्स फॉर आवर सर्वाइवल. इस प्रकार हम देखते हैं कि हवा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. द लेयर ऑफ एयर विच सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. हवा के अर्थ के चारों ओर हवा का एक आवरण है, उसे क्या कहा गया है? एटमॉस्फेयर, है ना. इट कंटेन्स मैनी गैसेस एंड पार्टिकल ऑफ वेरियस मटेरियल. और इसमें बहुत सारी गैसेस पाई गई हैं और मटेरियल के पार्टिकल्स पाए जाते हैं. द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई गई है. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम लेते समय ऑक्सीजन गैस का यूज़ करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन हेल्प इन बर्निंग ऑफ फूड वी ईट. ऑक्सीजन और क्यों जरूरी है? हम सांस लेते हैं और उसके साथ साथ जब हम खाना बनाते हैं तब किसकी ज़रूरत पड़ती है? आग की. तो आग जलाने में भी ऑक्सीजन जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं. प्रेजेंट इन द एयर. हवा में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स क्या करता है? प्रिपेयर फूड करता है, खाना बनाता है. इन दिस प्रोसेस दे गिव आउट ऑक्सीजन. और वो क्या गैस छोड़ते हैं?
oxygen. If air is not clean, it causes difficulty in breathing. Smokes causes excess of carbon dioxide in the air. हम देखते हैं कि एयर कब क्लीन नहीं हो सकता है, अगर एयर क्लीन नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही एयर क्या होता है, पॉल्यूट होता है, दूषित होता है। ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन एयर हैज़ मोर कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। क्लीन एयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। जो साफ हवा है वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। देयर इज़ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट हायर एटीट्यूड। There is less amount of oxygen at higher altitudes. People who climbs up high mountains carry oxygen cylinder and take oxygen from them when they feel lack of it. हम देखते हैं कि जैसे जैसे आप ऊंचाइयों में जाते जाओगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए जो माउंटेन में चढ़ता है वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाता है, ताकि उसे जब ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो उस सिलेंडर का वो यूज़ करता है। इन द इंटीरियर ऑफ सीज ड्राइवर आल्सो यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रीथ। वैसी जो समुद्र के अंदर में जाता है, तैराकी लोग होते हैं, है ना, वो भी अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम ब्रीथ करते समय ऑक्सीजन गैस का यूज़ करते हैं। अब कैरेक्टर ऑफ एयर। एयर की कौन कौन सी विशेषता क्वालिटी पाई गई है, इसमें फर्स्ट होगा एयर मूव्स। हवा क्या होती है, बहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है। द विंड इज मूविंग एयर व्हेन विंड मूव्स जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज। अब जो हवा है वो भी कई प्रकार की पाई गई हैं, जो धीरे धीरे चलती है ना, जिसमें अपन को ठंडकता का एहसास होता है, उसे ब्रिज कहा गया है। समटाइम्स द एयर मूव्स वेरी फास्ट विथ अ फोर्स, दिस इज कॉल्ड स्ट्राम। जो तेज हवा के साथ बहती है जिसे अपन आंधी कहते हैं, उसे इंग्लिश साइंस की भाषा में क्या कहा गया है, स्ट्राम। स्ट्राम डूरिंग समर हॉट विंड कोल्ड लू मेक्स द वेदर वेरी हॉट। गर्मी में कैसी हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, जिसे क्या कहा जाता है, लू। डूरिंग विंटर कोल्ड विंड्स ब्लो एंड मेक द डे बिटर कोल्ड। हम देखते हैं कि ठंड में ठंडी हवा बहती है ना, उसी से वातावरण क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि हवाओं के कारण ही हमें गर्मी का एहसास होता है, ठंड का एहसास होता है। तो गर्मी में गर्म हवा चलेगी तो गर्मी लगती है, जब हवा ठंड हो जाती तो ठंडी लगती है। बाय मूवमेंट ऑफ एयर वी कैन फ्लाई द काइट इन द स्काई। और अपन को कैसा पता चलता है हवा चल रही है, हवा का मूवमेंट कब पता चलता है, जब आसमान में पतंग उड़ती है। विंड हेल्प द मूवमेंट ऑफ विंड मिल्स इन ड्राइंग द क्लॉथ्स एंड इन सेलिंग द शिप। विंड की सहायता से ही विंड मिल बनाई जाती है। विंड मिल किस में सहायता करती है, कपड़ा बनाने में, कपड़ा सुखाने में और शिप को आगे ले जाने में। तो आजकल विंड का भी यूज़ हो रहा है, विंड मिल बनाया जाता है। एयर मूव्स अ डेफिनेट डायरेक्शन एट टाइम। और जो एयर है वो डेफिनेट टाइम में ही मूवमेंट करती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और हम देखते हैं कि कभी कभी ये अचानक बदल भी जाती है। यू कैन फील इट वाइल फ्लाइंग काइट्स और यू कैन सी वेदर क्लॉक शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो पतंग की जब उड़ती है उसकी सहायता से हम जान जाते हैं कि किधर तेज हवा चल रही है। वैसी एक वेदर क्लॉक होता है ना, उससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हवा किस तरफ ज़्यादा चल रही है। सेकंड उसका एयर का क्या लक्षण पाया गया है, एयर कंटेन्स वाटर वेपर। व्हेन वी हैंग अप वेट क्लॉथ इन द सन दे गेट ड्राइड अप सुन। जैसे ही हम देखते हैं कि हवा, जैसे ये कपड़ा सुखाते हैं तो क्या हो जाता है, सन से वो जल्दी सूख तो जाता है। दिस इज बिकॉज द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ इवापरेट एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर। तो हवा से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो जो वाटर किस में चेंज हो जाता है, इवापरेट में, भाप में चेंज हो जाता है।
दिस वाटर वेपर गोस इनटू द एयर। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वाटर वेपर है वो गैस में मिल जाती है। थर्ड, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। हवा जो है वो खाली स्थान पे अपना जगह घेरती है। टेक अ बलून, ब्लो एयर इनटू इट। एक खाली गुब्बारे को हम लेते हैं, जब इसमें हवा भरते हैं तो क्या हो जाता है, वो बिगर एंड बिगर। यू विल फाइंड डैट इट बिकम्स बिगर एंड बिगर। जैसे जैसे हम बलून में हवा भरते जाते हैं वो बड़ा होते जाता है। इट इज़ बिकॉज एयर गोस इनटू द बलून्स एंड ऑक्यूपाइज द एम्प्टी स्पेस। इस प्रकार हवा है वो खाली स्थान पे अपना जगह घेर लेती है। नेक्स्ट, एयर हैज़ वेट। एयर में क्या पाया गया है, भार पाया गया है। टेक टू ब्लेडर्स ऑफ फुटबॉल ऑफ द सेम साइज। दो आप सेम साइज का क्या लोगे, फुटबॉल लोगे। नाउ इन्फ्लेट वन ब्लेडर एंड वेट देम। एक बिना फुलाए वाले ब्लेडर को अपन वेट करते हैं। द ब्लेडर विद द एयर इज़ हैवियर। और जिसमें हवा ज़्यादा भरा गया है वो उसमें ज़्यादा वेट पाया गया है। दिस सो डैट एयर हैज़ वेट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एयर में क्या पाया गया है, वजन होता है, भार होता है। नेक्स्ट, एयर एक्सर्ट प्रेशर। हवा क्या बनाता है, दबाव बनाता है, दबाव के रूप में बाहर निकलता है। टेक अ प्रेशर कुकर एंड हीट सम वाटर इन इट। जैसे ही हम प्रेशर कुकर में पानी डालते हैं तो वो भाप बन के बाहर निकल जाता है, उस पर दबाव बनाता है। व्हेन स्टीम इज फॉर्मड इनसाइड इट, द प्रेशर एक्सटर्ड बाई स्टीम ब्लो द विसिल ऑफ द प्रेशर कुकर। तो हम प्रेशर कुकर में जैसे पानी डालते हैं वो हीट होता है तो सीटी बजती है। तो सीटी किस रूप में बाहर आती है, स्टीम के रूप में, है ना। वो एयर ही भाप बन के बाहर निकलती है। दिस प्रूव्स द एयर एक्सटर्ट प्रेशर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हवा है वो दबाव बनाती है। एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर हैज़ डस्ट एंड स्मोक। एयर में क्या क्या पाए गए हैं, डस्ट और स्मोक पाए गए हैं। अब स्मोक कहाँ से आता है, स्मोक कम्स आउट फ्रॉम व्हीकल्स, फायर्स एंड द चिमनीस ऑफ फैक्ट्रीज। तो स्मोक है वो व्हीकल से, जो गाड़ियाँ चलती है ना, आग जलाते हैं, और फैक्ट्री के चिमनी से आती है। ऑल दिस स्मोक गोस इनटू द एयर एंड मेक द एयर इम्प्योर। यही जो धुआं है वो किस में जाकर मिल जाती है, हवा में, और हवा को क्या बना देती है, वो इम्प्योर बना देती है। दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। इसी को ही एयर पॉल्यूशन कहा गया है। पॉल्यूटेड एयर हैज़ जर्म्स एंड पॉइजन गैसेस विच कॉसेज डिसीजेज लाइक अस्थमा, हार्ट डिसीजेज, डिसीजेज ऑफ लंग्स, टीथ एंड बोन्स। तो पॉल्यूटेड एयर अगर में बहुत सारे जर्म्स और पॉइजन वाले गैस पाए जाते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे अस्थमा, हार्ट डिसीज़ हो सकता है, लंग्स का डिसीज़ हो सकता है, टीथ और बोन्स में भी इसका इफेक्ट देखा जाता है। इफ़ वी इनहेल पॉल्यूटेड एयर, इसलिए हमें सांस लेते समय शुद्ध हवा ले लेना चाहिए। वी माइट गेट दिस डिसीजेज, सो वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर। इसलिए हमें साफ और फ्रेश एयर सांस में लेनी चाहिए। ये सब से हमें बचना चाहिए। अब प्लांट प्यूरीफाई द एयर। तो हम देखते हैं कि प्लांट्स है वो एयर को क्या करता है, प्यूरीफाई करता है, साफ बनाता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि आसपास प्लांट्स ज़रूर लगाने चाहिए, आपके घर के पास हरियाली होनी चाहिए। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स अराउंड आवर हाउसेस, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा घर के आसपास प्लांट लगाइए। वी शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन ए पार्क और ए गार्डन टू इनहेल फ्रेश एंड क्लीन एयर। और हमें मॉर्निंग वॉक में कहाँ घूमने जाना चाहिए, गार्डन जा सकते हो, पार्क जा सकते हो, ताकि वहाँ हमें शुद्ध और साफ़ हवा मिले, फ्रेश एंड क्लीन एयर, जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप एंड
कीप द एयर अराउंड अस क्लीन। अब हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हमें हवा को साफ रखना है। वाट शुड वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहला बता रहा है वी शुड पुट द गार्बेज इन अ बिन विथ अ लीड। हमें जितने भी कचरे हैं उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। थ्रो द गार्बेज एट फिक्स्ड पब्लिक प्लेसेस, और गार्बेज को भी डालने के लिए एक पब्लिक प्लेस बनाना चाहिए। अगर रास्ते में भी आप जा रहे हो, आपको कचरा दिख रहा है या फिर कुछ ऐसा चीज़ खा रहे हो, उसको आप सड़क में ना फेंककर एक बिन में डालिए। थर्ड, मेक ड्रेन प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, और पानी की भी सुविधा होना चाहिए। जो गंदे पानी आ रहे हैं उसके लिए नाली की व्यवस्था होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। फोर्थ, अवॉइड थ्रोइंग गार्बेज इन ओपन ड्रेन्स, और जितने भी कचरे हैं उसको आपको नाली में नहीं डालना है ना, उसको डस्टबिन में डालिए। अवॉइड यूजिंग एंड थ्रोइंग प्लास्टिक बैग इन ड्रेन्स, और प्लास्टिक बैग जो होते हैं पॉलीथीन, उसको भी आपको ड्रेन में नहीं फेंकना है, नालियों में नहीं फेंकना है। फिफ्थ, अवॉइड बर्निंग द गार्बेज इन द ओपन, और वैसे भी गार्बेज को भी जलाना नहीं है आपको, कचरे को इकट्ठा कर कर उसे जलाना नहीं है। जलाने से क्या होगा, स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, वो हार्मफुल में है। अवॉइड डिफिनेशन इन द ओपन, अवॉइड स्पिटिंग इन द ओपन, आपको ये सब फैलाने से भी रोकना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भी कुछ ड्यूटीज़ बनते हैं जिसे हम एयर को क्लीन कर सकते हैं। तो हम एयर का इसमें क्या क्या जाने, एयर ऑल लिविंग थिंग्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एयर कलरलेस होता है ना, शेपलेस होता है, और एयर मूव कर सकता है, एयर को हम फील कर सकते हैं। एयर में वेट पाया गया है, एयर ऑक्यूपेसिस स्पेस, एयर कंटेन वाटर वेपर, तो एयर में वाटर वेपर भी रहते हैं। तो इस प्रकार हमने एयर के बारे में जाना कि एयर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। एक इसमें प्रैक्टिकल भी बताया है कि एयर हेल्प्स इन बर्निंग, हवा है वो आग जलाने में कैसे सहायक है। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, एयर में क्या पाया गया है, ऑक्सीजन। इट हेल्प्स इन बर्निंग, वो आग जलाने में सहायक है। वी कैन नॉट बर्न थिंग विदाउट एयर, हम हवा के बिना कुछ भी चीज़ नहीं जला सकते। टू प्रूव इट, तो दो इसमें आपको एग्जांपल आप घर में भी जाकर कर सकते हैं। टेक अ कैंडल एंड लाइट इट, आप एक क्या लेंगे, मोमबत्ती लीजिए। नाव कवर इट विथ अ ग्लास जार, और उसको जलाने के बाद आप उसमें ग्लास को ढक दीजिए। द कैंडल स्टॉप बर्निंग, तो कैंडल है वो जलना बंद कर देगा। दिस सो डैट एयर इज रिक्वायर्ड टू बर्न थिंग, इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी चीज़ को जलाने में हवा की भी ज़रूरत पड़ती है ना। इस लेसन में हमने क्या क्या चीज़ समझा जाना। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, एयर इज़ अ मिक्सर ऑफ डिफरेंट गैसेस, हवा हमारे चारों तरफ है और हवा में कई प्रकार की गैसेस पाई गई हैं। एयर इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, हवा है वो हमारे लिए कई प्रकार की उपयोगी हैं। द लेयर ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, अर्थ के चारों ओर जो हवा की परत पाई गई है उसे ही वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर ऑक्यूपेसिस स्पेस एंड हैज़ वेट, हवा है वो स्थान घेरती है और हवा में वेट पाया गया है। इट कंटेन्स वाटर वेपर एंड इट एक्सट्रैक्ट प्रेशर, हवा में वाटर वेपर पाया गया है और उसमें दबाव बनाने की क्षमता होती है। ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन बर्निंग, ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए तो आवश्यक है ही, उसके साथ साथ वो आग जलाने में भी सहायक है। द डस्ट स्मोक एंड डर्ट पॉल्यूट द एयर, डस्ट है, स्मोक है, और जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं वो एयर को पॉल्यूट करते हैं। पॉल्यूटेड एयर कासेस इल हेल्थ, जो पॉल्यूटेड एयर होता है वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू ब्रीथ, हमें शुद्ध और साफ़ हवा की ज़रूरत होती है, तो हमें सांस लेने में फ्रेश एंड क्लीन एयर का यूज़ करना चाहिए।
ग्रीन प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। और जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वो हवा को क्या बनाते हैं? फ्रेश एंड क्लीन। ओके।